They are tools which can be used in the periphery by the ANMs, by the ASHA workers, or something may be done by the community health volunteers, something which is easily doable by the staff of the primary health center. That will be far more reaching actually. Because in these areas, the socio-economic development in these 3 states and those pockets of the states where the trouble lies is a tough game, because you'll have to push in money into the roads, you have to push a lot of money into other things, which hopefully will happen soon, but may not happen for very soon actually. Because the last point which I would like to highlight was, Dr. Srivastava will be staying back he may be participating in the panel also, I don't know what is the arrangement there, but what we are treated a system that Indian has plagued by another problem. Our elite institutions, they look at the sky, and you should look at the sky. As Indians, we also look at the sky. We are always proud of when something goes up, it goes somewhere, takes pictures. We explode our bombs so that we are safe. So we want to do those things actually. Nothing great, nothing bad about it. We have to do that. But parallelly in medicine, what happens, quite often the recommendations come from the elite institutions who are looking at the best. And good goal, I'm not saying nothing wrong about that. But that good goal comes at the last point. So even in the instruments which you have to purchase, the system which have to be recommended, recommendations come from these elite people, they come. They're good people, most of them. I don't say I have bad feelings about them. But they are not the one that escalates the cost like anything. So if 5 crore equipment, you can have 3. But their recommendation will just drive from 5 to 15 crore in one go. I fight that system every day, because as a top man, I have to give the approvals actually. And I see those 3 guys have sat together and they make a recommendation. So question arises, affordable technologies, but they have how many people they will benefit. So number is very important there actually. Whom are you catering? So for them we have created a medical technology assessment board, and that board has started functioning with Professor Beliathan, one of the very prominent cardiologists who invented so many things in his career. And that will, I think, will tell you what's the right kind of approach, which we'll introduce into the systems. So that will be through a proper system like a NICE model. America dwindled this system because of the commercial pressures there, but we won't let that happen actually, because we need it much more. Germany's done very well. The NICE model is doing very well. A number of good models which are doing very well. So ultimately the medical practices, which technologies are required, really how much they benefit, the guidelines, we are strengthening that system also. So that will provide again a complementary atmosphere to whatever affordable comes up. What is the best, which is the real cost effective, more people it benefits, is more applicable to specific areas where others don't work. I think that all will provide a very different environment, which will be a positive environment. But of course, I think today's morning is a very encouraging morning that I could meet a dreamer, and there are a lot of more people to share that dream. And that dream is for a better India, better world. And I think will give opportunities to more and more people to connect. Moreover, there was an issue about disconnect also was there, which you highlighted in your speech. Many people don't know with whom to approach. But the lack of money was not the factor at all. I tell you, that's in fact, more money has been pushed, it has gone down. You know, that's so the money has to be judiciously collected and judiciously spent for the judicial cause. Okay? I think that will have to be a very important advice to you, and maybe I may be there to talk to you later and whenever that opportunity arises. Best wishes to all. Welcome to all of you on behalf of the Government of India, and we assure you our partnership. Jai Hind. So may I request Sunil, please come up and facilitate him, and with a small token of gift. Those who are tech savvy have been told that you can tweet. You know how to tweet? So you can tweet about the summit. So it's
@wish_India #Scale Summit. Is it case sensitive? Because? No, it is not. Okay, so good. Do I repeat? @wish_India #Scale Summit. Okay, so my next speaker, he introduces himself as Pavan Putra Neeraj Kumar. He is one of the youngest IS officers I've come across. He's a firebrand leader. He's a real go-getter. He's a real innovator himself, and he's such a motivator, you can't believe it. He's a true game changer. He wears a number of hats. He's a joint secretary. He's a 2003 IS batch. And he's a joint secretary, he's a director IEC, and he's the additional mission director for National Health Mission, Rajasthan. I've been knocking the door in Rajasthan for the last 6 months to impress Sunil that we can do something. And I've done it in the last 2 weeks because I met him. And I met him in a forum where the entire audience was on their feet listening to his speech. And believe me, I am absolutely sure that he will make you stand on your feet and dance, okay? So over to Neeraj, please. Neeraj ji. गुड मॉर्निंग। मैं नीरज पवन हूँ, नीरज के पवन। नमस्कार। मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। आई होप आपको हिंदी समझ में आती है, एटलीस्ट 2-4 को छोड़ करके। मार्क एलन, या ही वॉज देयर इन दैट मीटिंग। राजस्थान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं एडिशनल एमडी 2003 बैच IAS ऑफिसर। काफ़ी चीज़ें बताई गई मेरे बारे में। ये जो पतला दुबला सा जीव आपके सामने खड़ा है, ये काफ़ी सारे इनोवेशंस के लिए जाना जाता है। हमने कोशिश की है राजस्थान में कि विश फाउंडेशन के साथ मिल करके हम कुछ अच्छा कर पाएँ। लेकिन एक बात मैं आपकी जानकारी में पहले से डालना चाहता हूँ कि कोई भी प्रयास, अभी हम सब मिलके ना, मैं देख रहा था हम सुबह से, अब तो ट्वीट के लिए भी बोल दिया है, तो बाकी जो बच्चे सब ट्वीट में लग जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हमें अच्छा भी बनाया है। कोई ये ऐसा नहीं लगता कि हम किसी काम के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर हम यहाँ पर किसी उद्देश्य से आए हैं, ये बढ़िया सा एसी कमरा, कौन सी होटल है यार ये, ताज मानसिंह, इसमें अगर कोई ढंग का कुछ काम करना चाहते हैं मिस्टर सुनील, ढंग का, ऑन ए सब्सटेंशियल नोट, उस गरीब के लिए जो कि गांवों में कहीं बसता है, उस पार्वती के लिए जो कि आपने कहा, उस अनीता, सुनीता, विनीता, कविता, जितनी भी महिलाएं हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सच में इससे कुछ आगे बढ़ के करना होगा। टुडे वी आर हैविंग funders, innovators, comment, Mr. Katoch was there, and many other partners. Scale, बड़ा अच्छा सा नाम है स्केल। विश फाउंडेशन का प्रेजेंटेशन यहाँ पे बड़ा अच्छा सा हुआ। हमें आप सबसे एक बहुत गहरी बात कहनी है कि अगर हम सबके मन में दिल से सच में कुछ करने की इच्छा है तो हम शायद कुछ कर पाएंगे। और अगर वरना बड़ी बड़ी मोटी मोटी कॉटन कॉट अच्छी बातें करनी है तो बहुत बढ़िया बढ़िया फोरम और भी हैं। इसके बाद कटोच साहब तो चले गए अगले फोरम में बात करने के लिए, है ना, वहां जाके और बड़ी अच्छी बातें करेंगे। हम सब मिलकर अच्छी बात करते हैं, होगा कुछ नहीं। लेकिन देयर आर पीपल, मेरा बहुत गहरे से मानना है कि अगर हम चाहें तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर हम कोशिश करें तो ये पॉसिबल है कि हम इस सिचुएशन को चेंज कर सकें। और आखिरी एक और चीज,
इनोवेशंस की यहाँ पर काफ़ी सारी बातचीत होगी। इनोवेशंस के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन सी इनोवेशंस स्केल अप हो सकती हैं, जिस समिट का ये नाम स्केल है। कुछ 2-3 इनोवेशंस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो यहाँ लगा ना, बढ़िया सा फोटो लगाया है, 2 फोटो लगाया है राजस्थान के बारे में। हमारे ML जैन साहब यहाँ बैठे हैं। ही वॉज डायरेक्टर RCH व्हेन आई वाज कलेक्टर करौली, डूंगरपुर, पाली, भरतपुर। उन्होंने मुझे बताया कि राजस्थान, आपकी जो बुक आपने निकाली है उसमें राजस्थान का नाम नहीं है, लेकिन मुझे लगा राजस्थान का नाम चाहे उस बुक में अंग्रेजी के मोटे मोटे शब्दों में हो चाहे नहीं हो, बड़ी ऐसी फोटो यहां लगा रखी है, अच्छा लगा। ये क्या है, मैं आपके मोटी मोटी 3 इनोवेशंस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। मुझ पे ये आरोप लगता आया है कि कुछ इनोवेशंस नीरज पवन के साथ शुरू होती हैं और खत्म हो जाती हैं। पर्सन ड्रिवन है, पर्सन सेंट्रिक है। उसने डिजाइन करी, जब तक वो था तब तक चली, उसके बाद खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। देयर आर पीपल लाइक विश फाउंडेशन, देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू सपोर्ट इट। अगर हम कोशिश करें तो पॉसिबल है। व्हेन आई वाज कलेक्टर डूंगरपुर 2007, we started something called pregnancy tracking system, PTS। महिला आयोग ने मुझे नोटिस दे दिया, जैन साहब साक्षी हैं इस बात के, कि आप महिला की ट्रैकिंग कर रहे हो, वो प्रेग्नेंट है, यू आर ट्रैकिंग हर। हमको समझा हुकुम, हम ट्रैकिंग नहीं कर रहे, हम उसकी हेल्थ की बात कर रहे हैं कि उसे सारी चीजें मिली कि नहीं मिली। आज वो PTS, प्रेगनेंसी ट्रैकिंग सिस्टम, PCTS के नाम से पूरे राजस्थान में लागू है, MCTS के नाम से पूरे देश में लागू है। छोटी सी इनोवेशन एक्सेल में बनाया था, सिंपल एक्सेल फॉर्मेट। आज उसमें काफी इनोवेशंस हो गए, काफी डेवलपमेंट हो गया। दूसरी चीज, मेरे को लगा कि यहां महिलाएं थोड़ी सी कम है ना, 2-3 तो है, हिमानी है, बाकी नारायणा से मैम आई है राजस्थान से। हमें उन सच्चाइयों को समझना पड़ेगा जो गांव में है। सुनील जी, मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं, यह देश गांवों में बसता है। यह देश इन AC कमरों में नहीं बसता यार, सीरियसली। पॉलिसीज उसके हिसाब से बनाई जानी चाहिए जिसको इंप्लीमेंट करनी है। जो मेरी आशा, पटवारी, ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, उसके हिसाब से बननी चाहिए, उसको समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज किसी काम की नहीं है। हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां, अच्छी अच्छी बातें यहां कर सकते हैं, पर उस पाली के, रायपुर तहसील के कलालिया गांव की एक कोई अगर सुनीता या पार्वती, योर पार्वती अगर कोई है तो उसके हिसाब से बनना चाहिए। उसके हिसाब से अगर मैं सोचता हूं तो अभी भी इस समाज में मेल डोमिनेंस है। बेटे का जन्म हो तो सब खुशी मनाते हैं, बेटा पैदा हुआ। बेटी हुई तो ओहो हो, कोई बात नहीं, कोई मिलने जाए ना, अगर किसी की बेटी हो गई तो बुरा, अच्छा 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 कोई बात नहीं, तो भगवान की इच्छा है। अरे भैया कोई बात नहीं का क्या मतलब हुआ? कोई बुरी बात थोड़ी हो गई यार, उसमें उसका कोई योगदान थोड़ी था। ही डिसाइडेड बेटी का जन्म खुशी का कारण हो, उत्सव का कारण। मिस्टर मोदी ने बोला, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अब तो उन्होंने अभी कहीं पर बोला कि हर बेटी का जन्म उत्सव मनाया जाना चाहिए। कोई एक गांव अडॉप्ट कर रहे थे वो यूपी में, वाराणसी में, नया जयापुर के उनके भाषण में उन्होंने बोला कि बेटी का जन्म उत्सव के रूप में होना चाहिए। जो राजस्थान से यहां पर मुझे जानते हैं वो इस बात का साक्षी होंगे कि पिछले 3-4 साल से हम हर एक बेटी का जन्म उत्सव के रूप में मनाते आए हैं। एक एक बेटी के जन्म पर हमने सोचा कि बेटी के जन्म पर कोई क्यों मिठाई बांटेगा, हम मिठाई बांटते हैं।
आप चेक कर लीजिए, आज भी पाली में हर बेटी के जन्म पर मिठाई बांटी जाती है। नंबर 2, हर बेटी के जन्म पर स्केल, मैं स्केल पे लौट रहा हूं कि हम कैसे इनोवेशंस को स्केल अप कर सकते हैं। हमने एक कंसेप्ट शुरू किया कि बेटी के जन्म पर 3100 रुपीज दिए जाने चाहिए। उसको 31 कहां से लाए, जैसे सोच लिया 2100 मां के लिए और 1000 रुपये उसको बच्चे के लिए वगैरह। अगर 3 साल के बाद उसकी दूसरी बेटी पैदा होती है तो 5100 रुपये दिए जाने चाहिए। हमने यह भी सोचा कि अगर कोई 1-2 बेटी पर स्टॉपेज लगा लेता है, 2D क्लब, 2 डॉटर्स क्लब, है ना, अगर 2D क्लब, आप में से होंगे कुछ लोग, अगर राजस्थान में होते तो मैं आपको 11,000 रुपये देता। आप लेट हो गए थोड़ा सा, या मैं थोड़ा सा बाद में आया। अगर कोई 2 बेटियों पर स्टॉपेज लगा लेता है तो हम उसको 11,000 रुपए देंगे, और अगर कोई 1 बेटी पर स्टॉप लगाए तो हम 15,000 रुपए देंगे। शुभ लक्ष्मी के नाम से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया, और पूरा स्टेट में जितनी बेटियां पैदा हो रही हैं, शुभ लक्ष्मी के नाम से हर बेटी को वही पैसा मिल रहा है। स्केलेबल थिंग्स आर देयर विच आर स्केलेबल इफ यू कन्विंस योर सीनियर्स, योर बॉसेस, इट इज पॉसिबल। और लास्ट चीज, ये जो फोटो बढ़िया से दिख रहा है आपको, हम ये चाहते थे कि पैसा हो गया, मिठाई हो गई, एक ग्रीटिंग कार्ड और जाना चाहिए यार, एक बढ़िया सा अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड। पाली में मेरे सिग्नेचर से नीरज पवन यूज्ड टू साइन, और हर एक बेटी के बर्थडे पर, उसके पैदा होने पर एक ग्रीटिंग कार्ड जाता था। अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले मिस्टर जब सौमित्रो मेरे पास आए, तब हम इस स्कीम के बारे में सोच रहे थे कि व्हाई नीरज पवन इज चीफ मिनिस्टर, और शी इज लेडी चीफ मिनिस्टर इन राजस्थान, तो उनके सिग्नेचर से जाना चाहिए। इज इट पॉसिबल? आज with the help of Wish Foundation, Mr. Soumitro, I am thanking him in front of everybody that he accepted this thing. क्योंकि पैसा नहीं था भाई, we started this thing. आज पूरे राजस्थान में आप नेट पे खोल के देखिए, हर बेटी के जन्म पर चीफ मिनिस्टर का सिग्नेचर्ड ग्रीटिंग कार्ड हर बेटी के जन्म पे जाता है। उससे अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि जहां 10 वो लगे हुए हैं, 20 अगर कहीं बेड्स लगे हुए हैं, उनमें से किसी के बेटा पैदा हुआ, किसी की बेटी पैदा हुई, अपने हाथ में नहीं है सर जी। वो जिस किसी को लगता है ना, वो मेरे से अलग से बात कर लेना कि ही कैन डू इट। PCPNDT का मैं 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि कर पाए, लेकिन इसमें समाज को जागना पड़ेगा। शायद यही तरीके हैं जिससे मैं वही बात, उस बात पे लौट रहा हूं मैं, कि सिर्फ कानून से नहीं हो पाएगा। जब उस मां को लगेगा कि तेरे को मिला, मेरे को नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? आपके बेटा हुआ, मेरी बेटी हुई, इसलिए नहीं मिला। और वैसे भी छोरों ने कुछ निहाल नहीं किया, हमने नहीं किया सर जी। तो यहां जितने बैठे हैं ना, जो मेल शोविनिस्टिक आगे छोड़ देना, उनके लिए मेरे को एक छोटा सा मैसेज ये है कि कल का राजस्थान पत्रिका, भास्कर, पूरे राजस्थान में एक स्टोरी छपी है। फर्स्ट न्यूज, फर्स्ट लीड, उसने मिस्टर मोदी को सेकंड कर दिया। ब्रिस्बेन में मोदी जी ने जो भाषण दिया वो सेकंड आया। फर्स्ट क्या थी? सिमरन की कहानी थी, वो आपको पता होगी, डॉक्टर माला। सिमरन एक बच्ची है, एक बेटी है, आपकी और हमारी सबकी, किसी न किसी की बेटी है, किसी डॉक्टर की बेटी है। डॉक्टर साहब ने ज्यादा दारू पी ली तो उनका लिवर खराब हो गया। डॉक्टर एंड उनकी वाइफ भी डॉक्टर थी, काफी लिवर ट्रांसप्लांट कराने की कोशिश करी, नहीं हो पाया। उनकी एक ही बेटी थी, बेटा कुछ नहीं। उसने अपना लिवर डोनेट किया। 18 ईयर्स, 17 ईयर्स। हमें हमेशा लगता है कि आड़े वक्त पर, राजस्थान की कहानी है, आड़े वक्त पर मुश्किल समय में, साहब वैसे तो सब ठीक है लेकिन अब क्या करें, बेटा तो होना ही चाहिए, बिजनेस कौन संभालेगा, मुश्किल टाइम पे कौन काम आएगा। मिस्टर नीरज पवन, आप आओगे क्या सामने?
उनके कोई बेटा नहीं था डॉक्टर राकेश के, सिमरन ने अपना लिवर डोनेट किया। आज पूरा राजस्थान खड़ा होकर के उनको, उस लड़की को थैंक यू बोल रहा है। जस्ट टू अंडरलाइन द फैक्ट, इनोवेशंस कैन बी स्केल्ड अप, इनोवेशंस इफ दे आर सपोर्टेड। तो मेरा आप सब लोगों से ये आग्रह ही है, बहुत दिल से ये आग्रह है कि हम सब मिल करके अगर ये एक प्रयास करें, छोटा सा प्रयास। हेल्थ सेक्टर, मैं हेल्थ सेक्टर में पिछले 10 महीने से हूं, काफी बातें मेरे बारे में कही गई हैं, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं नल हाइपोथेसिस लेके चल रहा हूं। बेसिकली आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई स्टार्टेड माई करियर विद क्लिनिकल साइकोलॉजी। मन पढ़ना और मन को समझना मेरा धंधा था, ढंग से यही काम करना। लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस पिछले 10 साल में जो समझ में आया है कि इस देश में अगर दिल से कोई अगर काम किया जाए तो पॉसिबल है। अगर हम टूट करके उस पूरे जुनून, पूरी जिद, पूरी उस जज्बे के साथ अगर हम करें तो पॉसिबल है। हम अगर चाहें तो पॉसिबल है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हमने ट्राई किया और पॉसिबल नहीं हो पाए। आज के इस मंच के माध्यम से अगर मैं आपसे कुछ कह सकता हूं, आखिरी चीज, इसके बाद मैं बैठूंगा। सौमित्रों आ गए यहां तक, मुझे पता है मुझे बैठना है। वो ही इज स्पीडिंग टुवर्ड्स मी। आपको बड़ा अच्छा सा ये बनाया हुआ है, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये जो बढ़िया सा येलो कलर का बनाया है, ये जो स्केल फाउंड का समिट है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अगर कुछ है तो वो गरीबड़ा है, वो पार्वती है मिस्टर सुनील। उस पार्वती के लिए अगर हम कुछ कर पाए और ये दिल ऐसे कर पाए कि सच में हमें गर्व हो, सब भूल जाइएगा। आपका बिजनेस, आपका ऑफिस, मेरा आईएएस, उस सबको भूल जाइए एक बार। उसके अलावा अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उस गरीब के लिए, और उस गरीब के लिए जो कुछ हो सकता है वो हम सब मिल करके करें। अकेले के बस का नहीं है। जो अभी वो टेलीफोन पे चल रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर का, एकला चलो जोदी तो डाक सुने क्यों ना आशे। आप में से कोई बांग्ला अगर हो तो, अगर कोई आपकी आवाज सुनने के बावजूद